Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Yesterday we have done the beggar half part. Today we will do the remaining part of the chapter. The billet wavered and fell down. तो जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई. The beggar again pulled it. बैगर ने उसको फिर से खींच लिया अपने पास and blew it his freezing hands and tapped it with his axe cautiously. Blew on his freezing hands. अपने जो बर्फ से जम रहे थे उसके हाथ ठंड से जम रहे थे तो उनमें उसने अपने हाथ में कस के पकड़ लिया. Tapped it with his axe cautiously और बड़ी सावधानी से उसने मारा. As if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके शूज पर न लग जाए कुल्हाड़ी या कहीं उसकी फिंगर न कट जाए. The stick of wood again fell to the ground. फिर भी जो लकड़ी थी कुल्हाड़ी की वो फिर से जमीन पर गिर गई. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps a sick man to work at manual labor in the cold. सर्गी का गुस्सा अब शांत हो चुका था and अब उसने feel a little sorry, थोड़ा दुख महसूस किया and ashamed और उसको थोड़ा शर्म भी आई अपने आप में for having set up spoiled, drunken, perhaps sick man to work. कि मैंने drunken और spoiled जो बिगड़ा हुआ आदमी था और sick भी था शायद बीमार भी था उसको मैंने manual labor means an unskilled inferior job दे दी in the cold और इतनी ठंड में. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. 1 घंटे बाद ओल्गा अनाउंस करती हैं और कहती हैं कि सारी लकड़ियां काटी जा चुकी हैं. गुड, सर्गी कहते हैं कि बहुत अच्छा, उसको हाफ रूबल दे दो. इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ. यदि वो चाहता है तो वो डेली हर मंथ के पहले दिन आ सकता है और लकड़ियां काट सकता है. On the first day of each month, we can always find work for him. हमेशा हम उसके लिए, ये रूबल है स्टूडेंट्स, हम हमेशा उसके लिए वर्क रखेंगे. On the first day of the month, the made his appearance and began earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. अब उसी दिन से on the first month के पहले दिन से ही he made his appearance, वो वहाँ पे आ जाता था and again earned half a ruble और उसको फिर से half ruble मिल जाती थी. Although he could barely stand on his legs, क्योंकि वो ड्रंकर था, मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था. From that day, उसी दिन से on he often appeared in the yard. वो डेली उस यार्ड में आ जाता था और उसे हर समय वर्क कुछ ना कुछ काम करने के लिए मिल जाता था. Now he would shovel. Snow. Now put the woodshed in order. Now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were
sent out to him. Now he would shovel. Shovel means remove snow. स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ पड़ने से ठंडा हो जाता है, वहाँ पे चीज़ों पर भी बर्फ़ गिर जाती है, घरों के सामने भी। तो कभी वो बर्फ़ हटाता एंड शोवल से, और कभी रिजम्बलिंग ए स्पेड विद ए ब्रॉड ब्लेड एंड टिपिकली अनटर्न्ड साइड्स, एंड कभी वो बर्फ़ हटाता। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और लकड़ियों को कभी ऑर्डर में रखता। एंड बीट द डस्ट, और डस्टबिन को झाड़ता। एंड उसकी मिट्टी निकालता। एंड मैट्रेसेस, और अच्छे करके रखता। इवन एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, और हर बार उसको 20 से 40 कोपेक्स तक मिल जाते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर, और एक बार तो उसको ओल्ड ट्राउजर का जो ओल्ड ट्राउजर भी दिया गया। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time, the wife was sober, gloomy, and silent. जब सर्गी ने देखा moved into another house, दूसरे घर में जाते हुए उसको, he hired him to help in the packing and hauling. हॉलिंग होता है ट्रांसपोर्टिंग का काम दे दिया गया उसको, कि जब वो डेली आ रहा था उनके घर, तो उसे फिर लकड़ी यहाँ से वहाँ ले जाने का काम दे दिया गया ऑफ द फर्नीचर। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर। इस बार अब जो वेफ है, वेफ कौन है? यही ड्रंकर मैन, बैगर, वो बहुत ही सोबर, शांत और साइलेंट दिख रहा था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर एंड वॉक्ड बिहाइंड द wagon, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He hardly touched the furniture. वो मुश्किल से ही फर्नीचर को टच करता था। And walked behind the wagons, hanging its head, और अपने सिर को लटकाए हुए पीछे चला जाता था। Not even making a pretense, वो बहाना, to show something which actually does not exist. वो बहाना बनाता था, बनाना जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में कहना। और अपियरिंग बिजी, और कहता था कि वो बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, his feebleness, and his faltered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. He only shivered in the cold. वो ठंड में कांपता रहता था, बहुत ठंड थी वहाँ बर्फ जमने की वजह से, तो उसमें कांपता रहता था। and became embarrassed, और शर्मा भी जाता था कभी कभी। when the carters jeered at him, carters जो काम करने वाले हैं, वो उसका मजाक बनाते थे। for his idleness, idleness निकम्मेपन पर, his feebleness उसकी कमजोरी पर, एंड हिज फाल्टर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसने जो ओवरकोट पहना हुआ था फटा हुआ उसके ऊपर। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्गी सेंट फॉर हिम। जब आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्गी सेंट फॉर हिम, जो सर्गी ने उसके लिए भिजवा दिया था। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? Laskov. Well, Laskov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. Well, I am happy. अब सर्गी कहते हैं उसके काम को देख करके कि मैं बहुत खुश हूँ। That my words have been taken effect, कि मेरे शब्द तुम पे काम कर गए, यानी कि तुम बदल गए हो, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हो। एंड हैंडलिंग हिम आ रूबल, उसको एक रूबल पकड़ाते हुए। हियर इज फॉर योर पेन्स, तुम्हारे जो तुमने काम किया उसके लिए है ये। आई सी यू आर सोवर, अब मैं जानता हूँ कि तुम शांत हो गए हो, बदल गए हो, तुम्हारा व्यवहार चेंज हो गया है। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लस्कोव।
मेरा नाम लस्कोफ है। वेल लस्कोफ, अब सर्गी कहते हैं ठीक है लस्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। अब मैं तुम्हें बहुत साफ सुथरा काम देने वाला हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिखना जानते हो? तो लस्कोफ कहता है यस, मैं लिखना जानता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन tomorrow and you will be given some copying to to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. अब सर्गी उसको कहते हैं कि then take this letter, उसको एक लेटर देते हुए कहते हैं कि देखो ये लेटर लेके जाओ और एक मेरा मित्र है, कल तुम उसके पास चले जाना, and you will be given some कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा वहाँ कॉपी करने के लिए। वर्क हार्ड, देखो कठिन परिश्रम करना। डोंट ड्रिंक, शराब नहीं पीना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो भी मैंने तुम्हें कहा है तुम ये याद रखना कि ना वहाँ शराब पीना, कठिन परिश्रम करना और कोई ऐसा गलत काम मत करना। गुड बाय। प्लीज्ड एट having put a man on the right path, Sergei tapped Laskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Laskov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. Pleased at having put a man on the right path. सर्गी बहुत खुश होता है कि मैंने एक बिगड़े हुए आदमी को, शराबी को अच्छे रास्ते पर ला दिया। सर्गी टैप्ड लस्कोप, सर्गी लस्कोप की पीठ थपथपाते हैं। काइंडली ऑन द शोल्डर, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जब अलग होते हैं तो हाथ मिलाते हैं। लस्कोप टुक द लेटर, लस्कोप लेटर ले लेता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उसी दिन से वो यार्ड में काम करने के लिए नहीं आता है। 2 years went by, 2 साल बीत गए। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. अब 2 साल जब बीत गए, then one evening, एक शाम, सर्गी was standing at the ticket window, सर्गी टिकट विंडो के पास खड़े हुए थे। He noticed a little man, उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी, सर्गी ने देखा कि एक छोटा सा आदमी था। beside him, जो उन्हीं के पास खड़ा हुआ था। विद अ कोट कॉलर, उसने कोट कॉलर पहना हुआ था। एंड कर्ली फर, और उसके कॉलर में फर लगे हुए थे। एंड अ बोन सील स्किन कैप, एक जानवर होता है जिसकी स्किन का कैप लगाया हुआ था उसने। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। This little individual timidly means in a shy or nervous way. तो ये जो छोटे कद का आदमी है, asked the टिकट सेलर ने कहा for a seat in the gallery, उसकी सीट गैलरी में है। and paid for it, और उनको चुकाना पड़ा इसके लिए कॉपर कॉइन्स चुकाना पड़ा। Laskov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former woodchopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? All right. अब सर्गी ने लस्कोफ को देखा और बोले, अरे लस्कोफ, तुम लस्कोफ हो ना? क्राइड सर्गी, चिल्ला करके बोले, तुम लस्कोफ हो ना? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड कटर, क्योंकि वो उनका पहला लकड़ी काटने वाला था, तो उसको पहचान करके उन्होंने बोला, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ? हाउ इज एवरीथिंग, और क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ?
ऑल राइट। तो लेस्कोप कहते हैं हाँ सब ठीक है। आई एम अ नोटरी, मैं एक नोटरी हूँ। नोटरी स्टूडेंट्स होता है अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज स्पेशली टू draw up or certify contracts, deeds and other documents for use in other jurisdictions. Now and am paid 35 rubles a month. और लस्कोप ने कहा कि अब मुझे 35 रूबल्स एक महीने के मिलते हैं। Thank heaven. That's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Laskov. You see, you are my godson. In a sense, I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. थैंक हेवन। अब सर्गी यहाँ पे कहते हैं भगवान को धन्यवाद। दैट्स फाइन, तुम्हारे साथ सब ठीक है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मुझे भी तुम्हारे लिए बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, बहुत खुश हूँ मैं लस्कोफ। यू सी यू आर माई गॉडसन, तुम मेरे गॉडसन जैसे हो। अब गॉडसन किसको कहते हैं? ए बॉय और अ मैन whom one promised to bring up, जिसको प्रोमिस किया जाता है। In a sense, I gave you a push along the right path. मैंने तुम्हें एक सही मार्ग पर चला दिया था। I gave you a push along the right path. You know, तुम जानते हो कि तुम शराबी थे, शराब पीते थे। Do you remember what a roasting? Roasting means scolding. कितनी डांट दी थी मैंने तुम्हें। I gave you. I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. उस दिन तो तुम मेरे अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, गिरने वाले हो रहे थे। थैंक यू ओल्ड मैन, तुम्हें धन्यवाद है। फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, कि तुम मेरे शब्दों को नहीं भूले। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। God bless that good and noble woman. You spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. How is that? अब लस्कोप कहते हैं I am very glad indeed. मैं भी बहुत खुश हूँ वास्तव में। Thank you for your kind words. आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके शब्दों के द्वारा से मेरे अंदर चेंज आया। एंड आपने जो मुझे काम दिया उसमें के लिए भी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। एंड टू योर कुक, बट तुम्हारी कुक का भी। गॉड ब्लेस दैट गुड, उस लेडी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोबल वुमेन, उस अच्छी औरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यू स्पोक फाइनली देन, आपने तो बोल दिया कि लकड़ी काट दो। एंड आई शैल बी इंडप्टेड टू यू, मैं तुम्हारा कर्जदार था। टू माई डाइंग डे, क्योंकि मैं उस दिन मर रहा था। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, पर मैं स्ट्रिक्टली बोलूँ, इट वॉज योर कुक, ये जो तुम्हारी कुक थी ओल्गा, हु सेव्ड मी, उसने मुझे बचाया। हाउ इज दैट, कैसी है वो? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh, you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. When I used to come to your house, जब मैं आपके घर आया करता था लकड़ियाँ काटने के लिए, तो she used to begin, तो वो लकड़ियाँ काटना शुरू कर देती थी। और तो वो बोलना शुरू कर देती थी, Oh, you sort means a habitual drunkard, जो का हमेशा शराब पीते रहते हैं, जिनको शराब पीने की
आदत हो जाती है। ओ यू मिजरेबल, दुखी प्राणी, क्रिएचर मीन्स प्राणी, दुखी प्राणी, देयर इज नथिंग फॉर यू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बट रून, तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी। एंड ग्रो सैड, और दुखी हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस, मेरे फेस को देखती, एंड रोती थी। ओ यू अनलकी मैन, तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। देयर इज नो प्लेजर फॉर यू, दुनिया में तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और कोई भी तुम्हारे लिए नहीं होगा, संसार में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। यू ड्रंकर्ड, शराबी, यू विल बोर्न इन हेल, ओ यू अनहैप्पी वन, एंड टू सी वुड कैरी ऑन, यू नो in that strain I couldn't tell you how much misery she stuttered, how many tears she shed for my sake, but the chief thing was she used to chop the wood for me. फिर वो कहते थे, शराबी, you will burn in hell, तुम्हें तो नरक में जलोगे तुम। ओ यू अनहैप्पी वन, बहुत दुखी आत्मा हो तुम। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, और फिर वो कहती रहती थी, आप जानते हैं, इन दैट स्ट्रेन, इतने दबाव में रहती थी वो, इतना सब कुछ सहती थी वो। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं नहीं कह सकता, आपसे बता नहीं सकता कि कितना वो दुख उठाती थी। हाउ मैनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक, मेरे लिए उसने कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग, पर सबसे बड़ी बात यह है कि शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक फॉर वुड फॉर यू, ऑफ वुड फॉर यू, शी डिड इट ऑल। वाई दिस शेप्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। डू यू, आप सर जानते हैं, लस्कोप सर्गी से कहते हैं कि सर आप जानते हैं, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक, मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी, ऑफ वुड फॉर यू, आपके लिए मैंने लकड़ियों में से एक भी लकड़ी नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, वो डेली सारी लकड़ी काटती थी। वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज, मैं क्यों बदल गया। वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। एट द साइट ऑफ हर, उसको देख करके। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इस बात को तो मैं बता भी नहीं सकता, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Laskov bowed and departed to the gallery. I only know that, केवल मैं जानता हूँ, owing to her words and noble deeds, कि उसने उसके शब्द मेरे ऊपर उधार है, उसका काम मेरे ऊपर उधार है। अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में जो चेंज आया। सी सेट मी राइट, उसने जो मुझे सही रास्ते पर चलाया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, ठीक है अब मेरा जाने का समय है। देयर गोज द बेल, घंटी बज चुकी है। लेस्कोप बोर्ड, लेस्कोप सिर झुकाता है। एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी से चला जाता है। स्टूडेंट्स, जो ओल्गा थी वो कभी नहीं चाहती थी कि मेरे एहसान का बदला दे, वो हमेशा यही चाहती थी कि बस इसमें सुधार आ जाए, ये पीना छोड़ दे, ये अच्छा आदमी बन जाए। और ये जो सर्गी हैं वो ये चाहते हैं कि ये मुझे धन्यवाद कहे, मुझे थैंक कहे, मेरा एहसान माने, मेरे लिए थैंकफुल हो। तो जो लस्कोफ हैं वो इनका थैंकफुल नहीं होता, वो इनको धन्यवाद नहीं देता, वो ओल्गा को धन्यवाद देता है। यहाँ पे स्टोरी फिनिश होती है। स्टूडेंट्स, अब जो बैगर हैं वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, वो एक नोटरी बन चुके हैं, अच्छे आदमी बन चुके हैं। स्टोरी फिनिश होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ।